Screen is visible now? Yes, ma'am. So in the last class, we completed till fringe benefits, that how we have to calculate the perquisite values for fringe benefits. Now we will understand the perquisites which are taxable only for specified employees. Okay, this is not for everybody, this is only for specified employees. And as per the definition, an employee is called a specified employee if any one, okay, so if any one of the following conditions get satisfied during the previous year. So what are the conditions? First is the employee is also a director of the organization. Okay, in case if he is a director, the employee is also a shareholder and is holding 20% or more of the equity shares. In that case also he'll be a specified employee. या फिर the taxable monetary salary from one or more employer is more than 50,000 rupees. ठीक है, so अगर previous year में his taxable salary, the monetary worth of the salary, if it is greater than 50,000, then also it is considered as a specified employee. ठीक है, so any of these three conditions if they get satisfied, we'll say that the employee is a specified employee. And usually the questions जो भी आएंगे ना उसमें स्पेसिफाइड ही होगा क्योंकि 50,000 इज अ वेरी लो अमाउंट. सो यूजुअली टैक्सेबल सैलरीज आर ग्रेटर देन दैट ओनली. ठीक है, but you can specify in the answer that since the condition third is being satisfied, so we are treating this particular employee as a specified employee. ठीक है, these are the 5 perquisites which are taxable only for the specified employees. ठीक है, so first we have to check whether he is a specified employee. If he is, then we have to tax these 5 whatever the facilities which are provided. अगर नहीं है तो these are exempted. ठीक है, so what all are the facilities? First is motor car. It is given under rule 3, uh, sub rule 2, then servant, then gas, electricity, water, education facility and transport facility. ठीक है, these are very very important. So first is motor car. ठीक है, the word motor signifies those vehicles which are registered under Motor Vehicles Act. ठीक है, only those vehicles which are registered we'll consider them as motor. ठीक है, if employer has provided two wheeler to his employee, ठीक है, two wheeler अगर उसने दिया है, then taxable value will be rupees 900 per month irrespective of the expenditure done by the employer. So अगर टू व्हीलर दिया है तो डायरेक्टली 900 पर मंथ से जो भी वैल्यू आएगी 900 इंटू 12 दैट विल बी टैक्सेबल. ठीक है, एक्सपेंडिचर नहीं देखना है आपको कि एम्प्लॉयर का एक्चुअल में कितना खर्चा हो रहा है. अगर उसने टू व्हीलर दिया हुआ है एम्प्लॉय को, इट विल बी टैक्सेबल एट अ फ्लैट रेट ऑफ रुपीज 900 पर मंथ. ठीक है, और कुछ भी आपको नहीं देखना. इफ एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी either in a car or in a bus to his employee, then it is exempt from tax. तो अगर कोई pick and drop facility given है, बहुत बड़ी organizations क्या करती है, मेट्रो से pick and drop facility provide कर देती है. So अगर ऐसी कोई facility provide कर रहे हैं, so वो taxable नहीं है employee के लिए, it will be exempted. If employer has taken a car on rent and provided to employee, or employer is owner of the car and it is provided to employee and employee uses the car. ठीक है, क्या है, या तो रेंट पे दी हुई है कार एम्प्लॉयर ने, या एम्प्लॉयर ओनर है ठीक है कार का, और उसने किसको दी हुई है, एम्प्लॉय को. और एम्प्लॉय कैसे यूज कर रहा है, इफ ही इज यूजिंग ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पसेस. ठीक है, पूरा खाली ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इफ ही इज यूजिंग, then it is exempted if employer maintains logbook. ठीक है, don't go deeper into what is this logbook, it is just an entry. So if the employer is maintaining that particular book, then it will be exempted. ठीक है, so question में लिखा होगा that the employer is maintaining a logbook या फिर employer is not maintaining a logbook. अगर वो नहीं maintain कर रहा है तो it will be taxable. ठीक है, but in case if it is only used for official purposes, it is exempted. अगर एम्प्लॉय यूज कर रहा है फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, देन यू हैव टू सी वेदर इट इज ओन्ड बाय ओनर बाय द एम्प्लॉयर और इफ इट इज ऑन रेंट. सो अगर कार इज ऑन रेंट by the employer, then the perquisite value will be the actual hire charges minus any amount charged by the employer from employee. ठीक है, सो अगर रेंट पे है तो डेफिनेटली हमारी perquisite वैल्यू क्या होगी, जितना खर्चा एम्प्लॉयर पे कर रहा है उसके हायर चार्जेस जो पे कर रहा है.
बट अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है एम्प्लॉय से, सो दैट विल बी अलाउड टू बी रिड्यूस्ड. ठीक है. इफ द कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तब परक्विजिट वैल्यू कैसे निकालोगे? इट विल बी एग्रीगेट ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ये क्वेश्चंस में गिवन होंगे. Depreciation at the rate of 10% of cost of car and salary of driver. इन तीनों अमाउंट को you will add up, then you will subtract any amount charged by the employer from employee. So this is for the car. ठीक है, कार की बात हो रही है. मोटर व्हीकल की हमने ऑलरेडी, टू व्हीलर की हमने ऑलरेडी बात कर ली है. 900 पर मंथ से होगा, बट उसमें चार्ज जो अमाउंट है वो रिड्यूस नहीं होगा. इट इज विदाउट एनी, दिस अमाउंट विल नॉट बी रिड्यूस्ड. पिक एंड ड्रॉप एग्जेम्प्टेड होगा. अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए तो इट विल बी एग्जेम्प्टेड इफ एम्प्लॉयर मेंटेन्स लॉगबुक, और पर्सनल पर्पसेस है तो इस तरीके से यू हैव टू कैलकुलेट. नाउ द थर्ड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूजुअली क्वेश्चंस में क्या होता है कि कार दी हुई है एंड द एम्प्लॉय इज यूजिंग इट पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पसेस एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पसेस. ठीक है, क्वेश्चंस में यूजुअली यही होता है कि एम्प्लॉय दोनों यूज कर रहा है, ऑफिशियल भी कर रहा है और पर्सनल भी कर रहा है. सो उस केस में आपको क्या देखना है? इफ द एक्सपेंडिचर इज डन बाय एम्प्लॉयर, क्वेश्चन में गिवन होगा. ठीक है, कि हु इज एक्चुअली bearing the expenditures on the first instance. ठीक है, कि कौन expenditures को bear कर रहा है. बिग कार के लिए perquisite value will be 2400 per month. ये सारे ना फ्लैट है. ठीक है. स्मॉल कार का perquisite value will be 1800 per month if it is done by employer. अगर एम्प्लॉय बेयर कर रहा है एक्सपेंडिचर्स, देन बिग कार का perquisite value will be 900 per month. स्मॉल कार की perquisite value will be 600 per month. ये कम हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि एम्प्लॉय उसको यूज तो कर रहा है, कार भले ही ओनर की है, ठीक है, बट उसको यूज कर रहा है, सारे एक्सपेंडिचर्स खुद बेयर कर रहा है, तो उसके लिए perquisite value उसका रेट कम है. ठीक है, बिग कार का 900 पर मंथ, स्मॉल कार का 600 पर मंथ. और इन्हीं के साथ, कार के साथ अगर ड्राइवर भी दिया है अगर कंपनी ने, तो उस केस में एडिशनल 900 पर मंथ इज टैक्सेबल. ठीक है, ये एडिशनल है, ऐड हो जाएगा 900 पर मंथ. आपको कैसे चेक करना है वेदर द कार इज बिग और स्मॉल? इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द इंजन पावर ऑफ द कार. ठीक है, उसकी इंजन कैपेसिटी कितनी है. सो अगर इंजन पावर ऑफ द कार इज ग्रेटर देन 1600 cc or 1.6 liters, it will be considered as a big car. And if the engine power of the car is less than or equals to 1600 cc or 1.6 liters, then it is a small car. So you never have to go by the size or in order to determine, in order to classify whether it's a big or small. You always have to check the engine capacity. ठीक है, उसका इंजन पावर कितना है. और 1.6 लीटर्स से ज्यादा है तो बिग, 1.6 लीटर्स या उससे कम है तो इट्स स्मॉल. If any amount is being charged by the employer from the employee for the use of the car, it will not allow to be reduced. These values are fixed values. These are flat rates. So whatever the amount charged by the employer from the employee, it will not allow to be reduced. ठीक है, ये पार्लियामेंट फिक्स करती है ये जो रेट्स हैं. ठीक है, ये ना तो बढ़ सकते हैं ना ये कम हो सकते हैं. ठीक है, दीज आर द फिक्स्ड रेट्स. डेफिनेटली आगे जाके कभी पार्लियामेंट इसको इंक्रीज और डिक्रीज करेगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि पार्लियामेंट में हर चीज डिस्कस होके पास हुई, हर बिल पास होता है वहां पे. तो वहां पे जब तक कुछ ऐसा नहीं है, जब तक ये रेट फिक्स्ड रेट है, इसको कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता. एंड दीज वैल्यूज आर कैलकुलेटेड मंथली वाइज, and month means completed months. You have to ignore any kind of fractions. ठीक है, पर मंथ है ना, मंथली फिगर्स है, कंप्लीटेड मंथ ही लेने हैं आपको. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कैलकुलेशन क्वेश्चंस में बहुत आता है मोटर का. नेक्स्ट इज, अभी तक हम एम्प्लॉयर का देख रहे थे. नाउ सी, the car is owned by employee and is used by employee, but the expenditure of the car are borne by employer. इसका मतलब एम्प्लॉय की कार है, वो उसको यूज भी कर रहा है, बट सारा खर्चा पानी जो कार का है वो सारा का सारा एम्प्लॉयर उठा रहा है. उस केस में इफ द एम्प्लॉय यूजेस ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, इट इज सेम exempt if employer maintains logbook. Employer uses for personal purposes. In this case, the actual expenditure incurred by the employer will be taxable for the employee, because
पर्सनल पर्पसेस थे, फिर भी एम्प्लॉयर उसको कोई एक्सपेंडिचर उसके बेयर कर रहा है, तो वो कैटेगरी में आ जाती है ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय met by the employer. So it will be taxable for the employees whether he is a specified employee or a non-specified employee. क्योंकि देखो ना, उसकी कार वो चला रहा है, अपने काम के लिए चला रहा है, और उसके सारे खर्चा एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, तो ये तो डेफिनेटली एक ऑब्लिगेशन हो गई ना एम्प्लॉय की, जो एम्प्लॉयर मीट कर रहा है. सो हमारी वो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था ना, ये जो हमारा पॉइंट था ये फ्रिंज बेनिफिट्स में, कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, नॉट फ्रिंज, पहली हमारी कंडीशन थी परक्विजिट्स की, मॉनेटरी परक्विजिट्स which are also known as obligations met by the employer. So ये वाली जो कैटेगरीज होती है हमेशा टैक्सेबल होती है, जिसमें एक प्रोफेशनल टैक्स भी हमने डिस्कस किया था. ठीक है, सो ये हमेशा टैक्सेबल होगा. If employee is using it partly for official and partly for personal purposes, then the perquisite value be expenditure incurred by the employer less 2,400 per month or 1,800 per month depending upon the size of the engine of the car. ये big car के लिए, ये small car के लिए, less 900 per month. So ये driver का आ गया, ये कार, ये जो हमने रेट्स अभी डिस्कस किए थे ना परक्विजिट वैल्यूज के, वो रेट सेम रेट्स आ गए हैं क्योंकि एम्प्लॉयर के रेट है, तो सेम रेट आ गए, 2,400 एंड 1,800. और ड्राइवर, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करके हमारी परक्विजिट वैल्यू आ जाएगी. सो क्वेश्चन में देखना है कि कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है या एम्प्लॉय की है. ठीक है, एम्प्लॉयर को ऐसे करना है और एम्प्लॉय की ऐसे करनी है. एम्प्लॉय वाले केस में एक्सपेंडिचर ध्यान रखना कि एम्प्लॉयर कितना खर्चा उठा रहा है, उससे शुरू होगा परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेट करना. Then comes pools of car. So if employer has provided more than one car to employee and all cars are used for official and personal purposes, then any one car at the choice of the employee will be taxable as per the rules of partly official or partly personal purposes, and all other cars will be taxable as per the rules of the personal purposes. So अगर एक से ज्यादा कार है जो कि एम्प्लॉय को दी गई है और employer ने दिया, means the employer is the owner or he has taken it on rent, whatever the case may be. So उस केस में ऑप्शन होता है एम्प्लॉय के पास कि किसी भी वो एक कार को तो पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल पर्पसेस की तरह कैलकुलेट कर ले परक्विजिट वैल्यू, और उसके अलावा जितने भी हैं उन सबको पर्सनल पर्पसेस के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर ले. ठीक है, सो इसमें क्वेश्चन है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. Mr. X is working as a director in ABC company. He is a director, so he is a specified employee. ठीक है, पहले ही हमने क्लियर कर लिया है कि he is a specified employee. Earning salary of rupees 1 lakh per month. So वो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाती है जिसमें annual 50,000 लिमिट है. The company has provided him 2 cars and these are the details. So this Honda City's engine power is 1550 cc, so it is a small car. Right, it's a small car. And mg hector, it's 1900 cc, it is a big car. हमने इंजन कैपेसिटी से we have decided. तो इसकी कैलकुलेशन होगी पूरे स्मॉल कार के अकॉर्डिंगली, इसकी कैलकुलेशन होगी पूरे बिग कार के अकॉर्डिंगली. यूज वो कर रहा है पार्टली ऑफिशियल, पार्टली पर्सनल, पार्टली ऑफिशियल, पार्टली पर्सनल पर्पस. Repairs and maintenance cost driver charged by employer from employee, although it is not relevant क्योंकि हमारे फॉर्मूला में है नहीं इनका कोई पर्पस. Calculate tax perquisite value for the director. Now since he has more than one car from the employer, so he has option, either he can treat this car as POPP and this car as PP, or this car as POPP and this car as PP. ठीक है, so he has option. So suppose हमने ये combination choose किया है that car 1 is partly official, partly personal, and the car 2 is this personal purposes. So जब partly official, partly personal purposes है, उसमें जो first car है, since it is a small car, so small car के rates देखो कितने हैं, 1,800 per month. ठीक है, so it is 1,800 per month. So 1,800 into 12 plus 900 into 12, क्योंकि ड्राइवर भी दिया है, राइट, ड्राइवर दिया है इसलिए 900 भी ऐड हो गया into 12. ठीक है, एंड इन दिस केस द अमाउंट चार्ज इज नॉट अलाउड टू बी रिड्यूस्ड, कुछ भी नहीं होगा. तो कार 1 की वैल्यू आ गई 32,400. कार 2
since it is considered as personal purpose, और personal purpose वाली के केस में कैसे calculations होंगी? Not this one. Because the aggregate of running and maintenance expenses, depreciation at the rate of 10% of cost of car, and salary of driver less any amount charged by the employer from employee. So this is for personal purposes. इसकी calculation ऐसे होगी. So देखो second car में repair and maintenance expenses is 80,000. Depreciation लगाएंगे इस पे 10% कितना आएगा? 1.2 lakhs. ठीक है, और salary of the driver, so it will be 6,500 into 12 amount आएगा, minus any amount of charged by the employer from employee, so it will be minus 12,000. ठीक है, so 80,000, 6,500, this is the salary of driver, this is 1.2 lakhs, you can add them up, then you can subtract the amount charged by the employer from employee. This is the perquisite value. So total perquisite value will be car 1 plus car 2. Yeah. Now the next combination is car 1 is PP and car 2 is POPP. ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन ये कॉम्बिनेशन सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ. एक बार ट्राई करो, तभी समझ में आएगा कि समझ में आया भी है नहीं आया. ठीक है, अब इसको कंसिडर करो पीपी और इसको कंसिडर करो पीओपीपी. जस्ट ट्राई इट आउट. मैम कितना आ रहा है? मैम कार 2 का 10,200 आएगा. कार 2 का 18,200. 10,000 मैम 10,000. 10,200. Others also please confirm. बिग कार है ना, बिग कार में फ्लैट होता है ना 2,400. सो 2,400 प्लस ड्राइवर के 900. मैम ड्राइवर के 6,500. अरे बेटा फ्लैट रेट है ये, 6,500 कैसे ले लोगे? अच्छा इसलिए ओके मैम. इस ये वाले जो रेट्स है ना पीओपीपी वाले, दीज आर फ्लैट रेट्स. 900 पर मंथ. छेड़खानी नहीं करनी है इन रेट्स के साथ. जो पीपी है उसमें एक्चुअल सैलरी ऑफ ड्राइवर है, यहाँ पे कोई फ्लैट नहीं है. तो कितना आ रहा है? 3,300 इंटू 12. 39,600. सो कार 2 का है 39,600. यस मैम. इसका बताओ कार 1 का. अभिषेक, आकाश, अनिरुद्ध, जल्दी बताओ इसका क्या आंसर होगा? Are you in the class? Abhishek, Akash, Anirudh.
Yes, ma'am. बताओ क्या होगा आंसर? किसने बोला अभी यस मैम? There are so many students in the class, or except Khushi, nobody answers. Anwar, Dipansh, Divya, Jaswinder, Jeet, Kalpana. Ma'am, I have retained the chat box. You have written in the chat box. Okay, okay, it's 254. 254 for total or 243? Total बता रहे हो? Ma'am, So 240. total is 282,600. Yes, the correct one is 2,43,000. सबका मैच कर रहा है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है? बिकॉज इट्स वेरी इजी. आपको सीधा सीधा रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, इसको ऐड करना है, इसका 10% जो 1 लाख है उसको ऐड करना है, फिर 7500 इंटू 12 को ऐड करना है. इन तीनों को ऐड करने के बाद इसमें से 1000 इंटू 12 दैट इज 12,000 को सब्ट्रैक्ट कर देना है. आसान है ना? इसमें पता है क्या है, ये बहुत ही आसान है. इसमें याद करने वाली चीजें बहुत है बस, कि खर्च किसकी कार थी, किसने खर्चा किया, कैसे किया, किस पर्पस के लिए कार यूज हो रही थी. तो ये सारे 3 फैक्टर्स हैं इसमें बेसिकली. उसी फैक्टर के अकॉर्डिंगली सब कुछ इसमें लिखा हुआ है कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है. तो बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो पार्टली पर्सनल और पार्टली ऑफिशियल पर्पसेस है, इसके रेट्स फ्लैट रेट है बस. ठीक है, इसमें एक्चुअल खर्चा आपको ध्यान नहीं रखना है. जो रेट्स है फ्लैट रेट्स है, सीधा सीधा चाहे क्वेश्चन में कितनी भी एक्सप्लेनेशन गिवन हो, किसके रिपेयर्स में इतना लग रहा है, मेंटेनेंस में इतना लग रहा है, इतना इसकी सैलरी है ड्राइवर की, दूसरा ड्राइवर लिया है उसकी सैलरी बढ़ गई, चाहे कुछ भी कहानी लिखी हो, आपको उसको फ्लैट रेट जो गिवन है उसी पे ही टैक्स करना है. और सिमिलरली अगर 2 व्हीलर दिया है तो इसका फ्लैट रेट है 900 पर मंथ. ठीक है, 2 व्हीलर में तो ड्राइवर नहीं देते हैं, वो 2 व्हीलर ही देते हैं, तो 900 पर मंथ. ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट रूल, सर्वेंट. So servant includes watchman, cook, gardener और domestic servant, but will not include the driver. ठीक है, ड्राइवर का केस we have already discussed. ड्राइवर usually मोटर कार्स के साथ आता है. If servant is employed by the employer but services are used by the employee, then it will be taxable only for the specified employees. ठीक है, कि employer की payroll पे है but सारी services कौन use कर रहा है? Employee. The perquisite value will be the salary of the servant which is paid by the employer less any amount paid by the employer to the by the employee to the employer. ठीक है, सो वेरी इजी. जो भी सैलरी पे कर रहा है एम्प्लॉयर उस सर्वेंट को, दैट विल बी द परक्विजिट वैल्यू. और इन केस एम्प्लॉय कुछ भी वापस पे कर रहा है एम्प्लॉयर को, दैट विल बी अलाउड टू बी रिड्यूस्ड. ठीक है, in case the employer is owner of accommodation which is used by the employee and employer also provides gardener, then the facility of gardener will not be taxable for the employee. ठीक है, सो अगर उसने कोई अकोमोडेशन दिया हुआ, अभी हम डिस्कस भी करेंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन यूजुअली देते हैं कि आप मतलब घर होते हैं खुद, वो अपने एम्प्लॉयज को देते हैं कि तुम रह लो उसमें. उसकी अभी परक्विजिट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी हम सीखेंगे. उसके साथ अगर उन्होंने कोई गार्डनर की फैसिलिटी भी दी है एम्प्लॉयर ने, तो इट विल बी एग्जेम्प्टेड. ठीक है, ध्यान रखना, अकोमोडेशन के साथ अगर गार्डनर भी मिला है तो गार्डनर की परक्विजिट वैल्यू एग्जेम्प्ट होगी, आपको नहीं कैलकुलेट करनी है. नेक्स्ट है गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर. ठीक है, सो इफ कनेक्शन ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इज इन द नेम ऑफ द एम्प्लॉयर. ठीक है, सो कनेक्शन किसके नाम पे है? एम्प्लॉयर के नाम पे है. But it is used by the employee, then it will be taxable only for the specified employees. The perquisite value will be calculated as per the following.
ठीक है. सो इफ एम्प्लॉयर हैज ओन सोर्स ऑफ, मतलब उसका मेन काम ही यही है, उसकी खुद की सप्लाई है. So if he has the own sources of gas, electricity, water, then perquisite value will be equal to the units consumed by the employee into manufacturing cost per unit. So जो एम्प्लॉयर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रही है ना उस एक यूनिट पे, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी जितनी भी यूनिट्स एम्प्लॉय कंज्यूम कर रहा है. But in case the employer is not having the sources of gas, electricity, water, then perquisite value will be the actual expenditure done by the employer. ठीक है. सो आप खुद दिमाग लगा के सोचो कि अगर एम्प्लॉयर की खुद की सप्लाई है, ठीक है, उसका काम ही यही है, तो इस केस में जो भी यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है एम्प्लॉय, उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना जो उसकी कॉस्ट पड़ रही है एम्प्लॉयर को, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ रही है. बट इन केस उसका है ही नहीं, तो जितना वो एक्चुअल में खर्चा उठा रहा है वो सर्विसेज देने के लिए, वो फैसिलिटी देने के लिए, वो पूरा खर्चा विल बी द परक्विजिट वैल्यू. बट जो भी अमाउंट अगर कुछ रिकवर करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से, दैट विल बी अलाउड टू बी रिड्यूस्ड. ठीक है. सो वो रिड्यूस हो जाता है अगर एम्प्लॉय कुछ भी पे कर रहा है इन रिटर्न उसको, तो और बैलेंस विल बी द परक्विजिट वैल्यू. Then comes education facility. So this is also very important. ये भी हर क्वेश्चंस के साथ, हर क्वेश्चन में घुसकर आ जाता है एजुकेशन फैसिलिटी. अगर ये एम्प्लॉय को प्रोवाइडेड है, इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट. कोई एजुकेशन फैसिलिटी अगर एम्प्लॉय को दे रहा है एम्प्लॉयर, इट विल ऑलवेज बी फुल्ली एग्जेम्प्ट. परक्विजिट वैल्यू विल बी निल. ठीक है. इफ इट इज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, अगर उसके बच्चों को दे रहे हैं, in case the employer is owner of the education facility and then it is provided to employer, then the perquisite value will be the fees charged by similar institutes in the similar area. ठीक है. एम्प्लॉयर क्या है, ही इज द ओनर ऑफ द एजुकेशन फैसिलिटी और वो एम्प्लॉय के बच्चों को एजुकेशन दे रहा है. तो परक्विजिट वैल्यू कैसे निकालोगे, जो भी सिमिलर इंस्टीट्यूट्स में नेबर एरियाज में, सिमिलर एरिया में जो चार्ज कर रहे हैं वो परक्विजिट वैल्यू होगी, जो भी फीस चार्ज कर रहे हैं. बट उसमें एक अमाउंट है जो एग्जेम्प्ट किया है लॉ में, दैट ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड विल बी एग्जेम्प्टेड irrespective of the number of children. irrespective of the number of children. ठीक है. 1000. याद है हमने एक वो एजुकेशन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस किया था, उस अलाउंस में याद हो आपको तो हमने 100 पर मंथ का एग्जेम्प्ट किया था, है ना, अलाउंस. और हॉस्टल का कितना किया था, 300 पर मंथ. याद आ रहा है अलाउंसेस में. तो ये क्या है, ये क्या है, ये है फैसिलिटी. ठीक है. एजुकेशन फैसिलिटी. देखो कहीं पे भी ना परक्विजिट जब कैलकुलेट करते हैं ना परक्विजिट वैल्यूज, कहीं पे भी अलाउंसेस नहीं आते, क्योंकि अलाउंसेस की कैलकुलेशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अलाउंसेस में कुछ कुछ कैटेगरीज हैं विच आर फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्ट एंड पार्टली टैक्सेबल. ठीक है. सो वो कैटेगरी इज एंटायरली डिफरेंट. ठीक है. उसमें जो एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस है ना, वो भी सिर्फ 2 बच्चों तक के लिए अलाउड है, उसके बाद नहीं अलाउड है, इट विल बी टैक्सेबल. बट ये हो रही है एजुकेशन फैसिलिटी. तो क्वेश्चन में से लिखा आएगा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज owned by the employer and he is providing the education facility to his 2 children during the previous year. ऐसे करके प्रॉपर लाइन आएगी जिससे आपको पता चलेगा कि ये अलाउंस की नहीं बात कर रहा है, ये एक प्रॉपर फैसिलिटी दे रहा है उसको. सो उस केस में क्या होगा, perquisite value will be the fee charged by the similar institutes in the similar area minus 1000 per month per child will be exempt irrespective of the number of children. But in case the employer is not the owner of the education facility, then the actual expenditure incurred by the employer. ठीक है. फिर तो जो उसको खर्चा पड़ रहा है वो फैसिलिटी देने का, वो पूरा का पूरा खर्चा will be the perquisite value. If any scholarship is given to children of employee, then it is fully exempt from tax. अगर उनकी कोई पॉलिसी है जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज के बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, then it will be exempted. एम्प्लॉय के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगी अगर कोई वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं उनके बच्चों को, तो ये उनकी पॉलिसी है. ठीक है. सो उसके अकॉर्डिंगली लॉ वो टैक्स नहीं करवाती है. In case it is provided to any other family member of employee, then whatever the expenditure done by the employer on education of family members of the employee is fully taxable for employee. ठीक है. सो जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा लग रहा है, it will be
एंटायर फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि ये ना सिर्फ चिल्ड्रन के लिए एग्जेम्प्टेड है, एम्प्लॉय के लिए तो पूरा एग्जेम्प्ट है, चिल्ड्रन के लिए 1000 पर मंथ का एग्जेम्पशन भी दिया है। बट फैमिली मेंबर में जो भी खर्चा, जितना खर्चा लग रहा है एम्प्लॉयर का फैमिली मेंबर्स में, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। क्वेश्चन में गिवन होगा उसकी वैल्यू, ठीक है, आपको उसमें लिखा होगा कितना एक्सपेंडिचर लग रहा है, आप उतना का उतना उसको पूरा टैक्स कर दो। देन कम्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अब देखो हमने क्या क्या किया, हमने ट्रांसफर अलाउंस किया है, कन्वेंस अलाउंस किया है, देन एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस किया है। अब यहाँ पे क्या आ गया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। याद है ट्रांसपोर्ट अलाउंस में क्या था, खाली हैंडीकैप के लिए एग्जेम्प्टेड था, और वो भी कुछ 3200 पर मंथ समथिंग, ठीक है। नॉर्मल एम्प्लॉयज के लिए इट वाज नॉट एग्जेम्प्टेड। ये अब बात कर रहा है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की, ठीक है। सो इन केस द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, it is fully taxable for employee and the perquisite value is the expenditure done by the employer। जो भी खर्चा लग रहा है एम्प्लॉयर का पूरा will be the perquisite value। जैसे कोई भी, जैसे कोई फैसिलिटी दी है, मेट्रो का स्मार्ट कार्ड्स दिए हैं, डीटीसी के बस पासेस दिए हैं, कुछ ऐसा कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी है, तो जितना खर्चा लग रहा है एम्प्लॉयर का, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। इन केस फ्री पासेस आर गिवन बाय द इंडियन रेलवेज टू इट्स एम्प्लॉयज और एयरलाइन कंपनीज टू इट्स एम्प्लॉयज, देन दीज आर फुल्ली एग्जेम्प्ट। इसका मतलब अगर कोई ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपने एम्प्लॉयज को कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रही है, it will be fully exempted ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के केस में, ठीक है। बट अगर कोई ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और कोई ऐसी फैसिलिटी दे रही है, तो पूरा जितना खर्चा लग रहा है इट विल बी टैक्सेबल, ठीक है। नेक्स्ट कम्स रेंट मैम फ्री अकोमोडेशन। यस बेटा। मैम मैम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में कार को इंक्लूड करेंगे? नहीं नहीं, मोटर कार तो बेटा वो आ गई है ना, मोटर कार की कैलकुलेशंस, अगर मोटर कार दी है ना तो उसकी कैलकुलेशंस बिल्कुल मोटर कार की तरह होंगी। ये ट्रांसपोर्ट ओके फैसिलिटीज में आपके ये सब आ गई हैं, जैसे रेल का कोई पास दे दिया है, मेट्रो का कोई पास दे दिया है, डीटीसी बस का कोई पास दे दिया है, ये सब बातें आएंगी इसमें। अगर कार या कोई टू व्हीलर दिया ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसकी कैलकुलेशन वैसी होगी जैसे हमने किया था। ओके मैम। देन यस, कुछ कहना है बेटा? मैम ये जो सारे आप अभी रूल्स पढ़ा रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट वो क्या मेरे को समझ, क्या जो हेलो, मैं सारे रूल्स पढ़ा रही हूँ? यस मैम, जो मोटर व्हीकल वाला भी पढ़ा है आप, जो लास्ट पढ़ा है ट्रांसपोर्ट वाला, ये सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए तो है? हाँ हाँ हाँ, अभी तक ये खाली यहाँ तक इट इज ओनली फॉर स्पेसिफाइड। ये रूल 3 सब रूल 6 है ना, ये सारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए, यहाँ तक इट इज ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, बाकियों के लिए नहीं है, ठीक है। और यूजुअली ना एम्प्लॉय स्पेसिफाइड ही बन जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ना 50,000 से ज्यादा या 50,000, मतलब इतने छोटे, बस अगर कोई एम्प्लॉय होगा उसके लिए नहीं होगा टैक्सेबल। बट आप खुद देखिए आज की डेट में 50,000 क्या होता है ना। अगर किसी को 10, मतलब देखो ना, अगर किसी को 5,000 भी मिलेगी तो भी उसके साल के 60,000 हो जाएंगे सैलरी, तो वो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपके स्पेसिफाइड ही होंगे वो सारे, इतने छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें बेसिक सैलरी 100 रुपीज या 200 रुपीज होगी, थाउजेंड्स नहीं आएंगे आपके, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीटेड फॉर द स्पेसिफाइड। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेंट फ्री अकोमोडेशन, एंड इट इज गिवन अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1। और एक और होता है अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट, मतलब रेंट फ्री में तो रेंट ही नहीं चार्ज कर रहे, कंसेशनल रेंट में क्या होता है, कम जो मार्केट में रेंट होता है उससे कम रेंट चार्ज करता है। सो दिस इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 17। So under this concept, employer provides residential accommodation to his employee. This accommodation can be owned by the employer or it could be taken on rent by the employer. Further, it could be furnished or unfurnished. ठीक है, furnished में मतलब फर्नीचर वगैरह सारे ऑलरेडी उसमें लगे हुए हैं, अनफर्निश्ड मतलब खाली प्रॉपर्टी वो दे रहे हैं। So if the accommodation is given by the government employer to its employee, then it will be taxable for employee, and taxable perquisite value
will be the license fees calculated by the government. So it will always be given in the question. ठीक है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या होगा, मींस द एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, सो गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो उसकी परक्विजिट वैल्यू विल बी द लाइसेंस फीस कैलकुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, सो अगर गवर्नमेंट का केस है तो बस लाइसेंस फीस का अमाउंट होना चाहिए और ये हमेशा क्वेश्चन में होगा. ठीक है, अगर अकोमोडेशन इज गिवन बाय द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एंड इट इज टेकन ऑन रेंट. ठीक है, so it is not owned by the employer, it is taken on rent by the employer, then the taxable value will be lower of actual rental expenses 15% of salary. salary की definition अभी हम करेंगे कि क्या होती है. ठीक है, so अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है और उसने अपने एम्प्लॉय को कोई अकोमोडेशन दिया है और वो अकोमोडेशन उसने खुद रेंट पे लेकर फिर दिया एम्प्लॉय को. ठीक है, ओनर नहीं है एम्प्लॉयर, उसने रेंट पे लेके दिया है. So उस केस में perquisite value will be lower of, इन दोनों values का lower will be taken as the perquisite value which will be taxable. Actual rental expenses and 15% of salary. Salary का अभी हम करेंगे, so अभी छोड़ दो इसको. In case the employer is owner, ठीक है, अब उसने rent पे नहीं लिया, he is the owner. So if in case it is the owner of the accommodation and it's provided to the employee, then the taxable value will depend upon the population of the city in which the accommodation is provided. ठीक है, so अगर owner है तो सबसे पहला factor देखना है आपको population. अगर city की population if it is greater than 25 lakhs, perquisite value will be 15% of salary. If it is between 10 to 25 या 25 के बराबर भी है तो it is 10% of salary. If it is less than 10 lakhs, it is 7.5% of salary. Salary अभी छोड़ दो, क्या है इसका मतलब वो अभी हम करेंगे. आपको क्वेश्चन में पॉपुलेशन दिया होगा, पॉपुलेशन साइज. ठीक है, बिकॉज इट हैज टू बी चेक्ड एज पर 2001 सेंसस. ठीक है, सेंसस में कैलकुलेट होती है हर सिटी की पॉपुलेशन. तो अगर जो भी सिटी है उसमें जहां पे अकोमोडेशन दिया है उस सिटी की पॉपुलेशन चेक करनी है. और इफ इट इज ग्रेटर देन 25 lakhs 15%, 10 से 25 10% एंड लेस देन 10 lakhs इज 7.5%. ठीक है, ये फ्लैट रेट है. देन if employer is owner of accommodation and it is used by the employee and the employer has also provided the facility of gardener, then the facility of gardener will not be taxable. This is repeated, we have already discussed this, right? But agar accommodation is not by the employer, is not owned by the employer, then it will be taxable. ठीक है, सो अगर अकोमोडेशन ओन करता है एम्प्लॉयर तो गार्डनर की फैसिलिटीज एग्जेम्प्टेड, बट अगर ओन नहीं करता है तो नहीं, इट विल बी टैक्सेबल. ठीक है, नेक्स्ट if accommodation is furnished accommodation. ठीक है, अब सेकंड फैक्टर आ गया. अभी तक हमने दो फैक्टर्स देखे हैं, एक तो एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया है, एक एम्प्लॉयर ने ओन किया है. अब आता है फर्निश्ड और नॉन फर्निश्ड. If accommodation is furnished accommodation, then in addition to above values, the value of furniture will also be taxable. If furniture is owned, अब दोबारा दो फैक्टर्स आ गए कि फर्नीचर ओन कौन करता है. If the furniture is owned by the employer, then the taxable value will be 10% per annum of the cost of the furniture. Lekin if the furniture is taken on rent, then the actual rental expenses will be taxable. Easy है. अगर फर्निश्ड है और देखना है कि वो जो अंदर जितना भी सामान रखा हुआ है फर्नीचर का या जो भी फैसिलिटी वो दे रहा है, तो वो सारी की सारी अगर ओनर उसका ओनर एम्प्लॉयर ही है तो क्या होगी 10% ऑफ द कॉस्ट, जो भी डेप्रिसिएशन कॉस्ट होगी 10% पर एनम. बट इन केस वो भी रेंट पे लिए हुए हैं तो जो वो एक्चुअल में रेंट पे करता है वो टैक्सेबल होगा. नाउ if employer does not charges any amount, then it is called as rent free accommodation. If employer charges any rent from the employee, then it will be reduced from the taxable perquisite value, and this concept is known as accommodation at concessional rent. ठीक है, सो अगर कुछ भी नहीं चार्ज कर रहा तब तो रेंट फ्री है, और अगर कुछ भी चार्ज कर रहा है तो इट इज कंसेशनल रेंट पे अकोमोडेशन दिया एंड इट इज अलाउड टू बी रिड्यूस्ड. मतलब इट्स, देखो ना, खुद अगर एम्प्लॉय कुछ पे कर रहा है अगर तो वो डेफिनेटली रिड्यूस होगा.
If employer has provided more than one accommodation to the employee, then only one accommodation is taxable for the period of first 90 days, and after 90 days all accommodations will be taxable. ठीक है. So अगर एक से ज्यादा है, वैसे ये एग्जाम्स में नहीं आता है आपके. ठीक है. बट आपकी नॉलेज के लिए, इफ एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड मोर देन वन अकोमोडेशन, तो सिर्फ एक अकोमोडेशन टैक्सेबल होगा फॉर द फर्स्ट 90 डेज, मतलब फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, और उसके बाद नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए सारे अकोमोडेशंस को कैलकुलेट करना है परक्विजिट वैल्यू और उन सबको ऐड अप करना है. इफ एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड अकोमोडेशन इन होटल, ठीक है, अगर जैसे काफी बार होता है ना कि किसी कोई एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय होता है, उसको 15-20 दिन के लिए एक होटल दे देते हैं कि आप अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लीजिए जब तक. तो अगर ऐसा कोई अकोमोडेशन देते हैं होटल में, कोई गेस्ट हाउस में या कुछ भी, देन परक्विजिट वैल्यू विल बी लोअर ऑफ 20% ऑफ सैलरी या फिर एक्चुअल रेंटल एक्सपेंसेस ऑफ होटल, विच एवर इज लोअर. ठीक है. 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंटल एक्सपेंसेस. It will be taxable only if the both the below conditions are satisfied. ठीक है. सैलरी की अभी हमने एक की भी डेफिनेशन की नहीं की है क्योंकि सबकी सेम आएगी अभी हम जब करेंगे. तो अगर कोई होटल में अकोमोडेशन है तो ये लोअर तभी टैक्सेबल होगा जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी. स्टे इन होटल इज नॉट बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी. मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसफर होटल में स्टे नहीं हो रहा है. इट शुड बी एनी अदर रीजन अपार्ट फ्रॉम द ट्रांसफर. And stay in a hotel is more than 15 days. अगर less than 15 days है तो taxable नहीं होगा, it will be exempted. अगर 15 दिन से ज्यादा है तो taxable होगा. तो दोनों conditions, एक तो किसी का ट्रांसफर की वजह से नहीं होना चाहिए और स्टे 15 दिन से ज्यादा होना चाहिए. तब हम ये फॉर्मूला लगा के लोअर वैल्यू निकालेंगे एज परक्विजिट वैल्यू, अदरवाइज इट विल बी एग्जेम्प्टेड, इट विल नॉट बी टैक्स्ड. ठीक है. नेक्स्ट, in the following situations facility of rent free accommodation is not taxable. ठीक है. So ये not taxable की categories है. accommodation given to judges of high court, supreme court, ठीक है, अगर judges को मिलता है, ministers, prime ministers, presidents, officials working in the parliament, leaders of oppositions party in the parliament, then accommodation given in remote area, offshore installation, dams and mines. ठीक है. So these are the 5 categories for which we do not calculate the value of rent free accommodation or accommodation at concessional rent. We do not calculate. It will be entirely exempted. ठीक है. क्लियर है अब तक? I know there is lot of theory, but ये सब हमें करना पड़ेगा क्योंकि questions में ना इनका impact आता है. अब आती है डेफिनेशन ऑफ सैलरी. सो सैलरी विल इंक्लूड बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ऑल टाइप्स ऑफ कमीशंस. ठीक है. नॉट जस्ट फिक्स परसेंटेज ऑफ द टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय, ऑल टाइप्स ऑफ कमीशंस, वेदर फिक्स्ड, वेरिएबल, एनीथिंग. बोनस, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द अलाउंस, मतलब एग्जेम्प्टेड नहीं, टैक्सेबल पोर्शन, जो भी एग्जेम्प्ट करके सब्ट्रैक्ट करके जो अमाउंट आएगा ना वो. पेमेंट विच आर नॉट इन द नेचर ऑफ मॉनेटरी पर्क्स, मतलब कोई भी मॉनेटरी पर्क्स नहीं, वैसे अगर उसके अलावा कोई पेमेंट है जैसे लीव इनकैशमेंट की है, सो उस केस में इट विल बी एडेड. देन पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर, अवार्ड्स, प्राइजेस, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, या अगर कुछ ऐसा है तो it will be included under the definition of salary. What all will not be included, कोई भी एडवांस सैलरी का, कोई भी एरियर्स ऑफ सैलरी, कोई भी बोनस के एरियर्स, प्रोविडेंट फंड या उसका इंटरेस्ट, कोई भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी पर्क्स. ठीक है. इसमें सारे पर्क्विजिट्स वैल्यू आ गई. जो ये वाला केस था ना, उसमें क्या था कि कोई पेमेंट हुई है विच इज नॉट इन द नेचर ऑफ मॉनेटरी पर्क्विजिट्स, मतलब लीव इनकैशमेंट. बेसिकली आपके पास लीव्स थी, आपने उसका इनकैश करा लिया. ठीक है. आपको ये कोई पर्क्स नहीं थे मॉनेटरी पर्क्स, आपके पास लीव्स बची हुई थी इसलिए आपने उनका इनकैश करा दिया. तो खाली लीव इनकैशमेंट इसमें इंक्लूसिव होता है, अदरवाइज कोई भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी पर्क्स नहीं होते इंक्लूसिव. रिटायरमेंट बेनिफिट्स कौन से हो गए आपके? ग्रेचुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, और क्या होता है? बस यही होता है. लीव इनकैशमेंट इज टैक्सेबल. ठीक है. सो ये बाकी तीनों नहीं आएंगे.
So salary will not include these things. So you have to learn these. ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा. हमेशा दिमाग में रखना कि रेंट फ्री अकोमोडेशन वाले की सैलरी की डेफिनेशन सबसे ज्यादा बड़ी है पूरी सैलरी में. ठीक है, उसमें सब कुछ इंक्लूसिव है. और क्या इंक्लूसिव नहीं है? कोई भी एडवांस, कोई भी एरियर, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, परक्विजिट्स. ठीक है, बट लीव इनकैशमेंट है. ठीक है, और अलाउंसेस का खाली टैक्सेबल पोर्शन इंक्लूसिव है, नॉन टैक्सेबल पोर्शन नहीं है. ठीक है, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. मिस्टर एक्स is working as a pilot with Kingfisher Airlines, getting salary of rupees 1,25,000 per month. His DA is 75,000 per month, out of which 50,000 per month is for retirement benefits. So DA for retirement benefits. Medical allowances is rupees 5,000 per month. अब देखो ये medical insurance premium नहीं बोल रहा है, ये medical allowance बोल रहा है. और medical allowance is a personal allowance which is fully taxable. So it will be fully taxable. No exemption is given. It is taxable. Then uniform allowance. Uniform allowance is rupees 3,000 per month and his expenditure has been 2,000 per month. So कितना taxable होगा इसका? मैम 2000 पर मंथ, 2000 पर मंथ 1000 24,000. बेटा 1,000 per month होगा ना, 3,000 minus 2,000. यूनिफॉर्म अलाउंस मैम जो उसका पेड होता है वही तो करते हैं ना, जितना उसका एक्सपेंडिचर हुआ है यूनिफॉर्म अलाउंस में. यूनिफॉर्म अलाउंस जो नहीं, एक्सपेंडिचर 1,000 होगा. जो ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है वो तो एग्जेम्प्ट होता है ना. इट विल बी 12,000 ओनली. देखो ना, ये अलाउंसेस की वो कैटेगरी है ना, 5 कैटेगरीज जो मैं ध्यान में रखनी होती है. 5 है शायद. दिस वन, नॉट दिस वन, ये वाली. ये वो अलाउंसेस है ना जो हमें लोअर ऑफ लेना है. द अमाउंट ऑफ अलाउंस और द अमाउंट यूटिलाइज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस फॉर व्हिच द अलाउंस इज गिवन, व्हिचएवर इज लोअर. So 2,000 ऑफिशियल पर्पस है, एक्चुअल 3,000 है, तो 2,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा ना, लोअर. So 1,000 will be exempted. ठीक है, so इस केस में 1,000 will be exempted. Next, the company has given him a car with engine power of 1,300 cc. So it means it's a small car. Along with the driver, ठीक है, driver भी है. All the expenses of the car are borne by the employer. ठीक है, so employer करता है अगर borne, और partly official और partly personal purposes है, तो small car का कितना रेट है? 1,800. 1800 1,800 plus 900 ड्राइवर के. yes Yes, ma'am. इतने multiply by 12. This is the perquisite value of car. ठीक है, so the perquisite value of car is 1,800 plus 900 into 12. This medical allowance is fully taxable. Basic salary DA fully taxable. Next comes, the company has provided him a flat at Delhi. ठीक है, we know the Delhi, the population is in crores, so it is definitely greater than 25 lakhs. ये तो clear है. Furniture which has a cost of rupees 7 lakhs. ठीक है, so furniture भी दिया है, तो इसका मतलब furnished home दिया है इसने. ठीक है, so company has provided him a flat at Delhi and furniture which has a cost of rupees 7 lakhs. और कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसका मतलब the employer is not the owner of the flat. ठीक है, उसको कॉस्ट पड़ रही है कितनी? 7 लाख की. तो एंटायर दिस नहीं, कहाँ पे है ये? जस्ट अ मिनट. क्या हमारी होती है इसमें? मैं कैलकुलेशन ही भूल गई, रुको. अच्छा, सॉरी. इट इज द एम्प्लॉयर इज ओनर का ये है, द एम्प्लॉयर इज नॉट द ओनर. एक्चुअल रेंटल एक्सपेंसेस और 15% ऑफ सैलरी, तो इसका यही होगा ना, एक्चुअल रेंटल एक्सपेंसेस
that is 7 lakhs and 15% of salary. No, actual में ना he is the owner. ये question solve किया हुआ है assuming that he is the owner. ठीक है, so अगर ऐसा कोई rental word ना लिखा हो ना तो assume in the question that the company is the owner. ठीक है, owner वाले केस में क्या है, the population is greater than 15 they greater than 25 lakhs, so it is 15% of salary. 15% of salary and 10% of the cost of asset. This one. ये वाला एप्लीकेबल होगा और फर्नीचर भी दिया है इसलिए 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर. हम अज्यूम कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर ओन करता है इसको जो इसने दिया है, ये रेंटल एक्सपेंसेस नहीं है. ठीक है, सो अभी ये वाला भी देखते हैं हम फ्लैट का कैसे कैलकुलेट करना है, बाकी और क्वेश्चन कर लेते हैं. ही हैज कंज्यूम्ड 100 मील्स एंड द कॉस्ट पर मील इज ₹150. The company has provided him Kingfisher beer worth ₹2,500. So beer is an alcoholic drink that will be entirely taxable. और जो मील होती है, मील का कुछ exempted portion होता है, I think 5,000 नहीं ₹50 per meal. ठीक है, that is exempted. मील का किया था ना हमने, मील टी एंड स्नैक्स का. तो मील में क्या होता है, इट इज टैक्सेबल बट ₹50 पर मील इज एग्जेम्प्टेड. सो कितनी मील ली है उसने, 100 मील्स ली है at the rate of ₹150. So 100 into 150, 15,000 minus 50 into 100, 5,000. So this is the taxable portion, and beer is also entirely taxable. Then his daughter is taking training in Air Hostess Academy, which is owned by the company. ठीक है, so company is the owner. The fee charged by other institutes for similar courses of 9 months is ₹50,000. So 50,000 minus 1,000 per month, which is exempted. So category में लिखा हुआ है ना कि if he is the owner of the academy, then 1,000 per month will be exempted. So daughter की education का खर्चा जो similar institutes में होता वो होता 50,000 और उसमें से 1,000 per month exempted है. So taxable is 41,000. इसके बाद हमें नहीं दिया कुछ भी. सो अब हमें फ्लैट की कैलकुलेट करनी है. फ्लैट की क्या है, 15% ऑफ सैलरी. अब सबसे पहले देखो सैलरी की डेफिनेशन में जो जो आता है वो हम इंक्लूड करते चले जाएंगे. ठीक है, सो क्या क्या इंक्लूड होगा, बेसिक सैलरी इंक्लूसिव, DA only for the retirement benefits. So only for the retirement benefits is 50,000 into 12. So 6 lakhs होंगे इसमें. पूरा का पूरा नहीं है DNS allowance, only for retirement benefits. Medical allowance. अब allowances की क्या बात हुई थी, only the taxable portion of the medical allowances. So पूरा taxable है 60,000. It will be included. 12,000 will be included. ठीक है. Motor car. This is a perquisite. ठीक है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स हमें नहीं कंसीडर करने हैं, सो ये नहीं होगा. मील अगेन इट इज अ परक्विजिट, सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड. beer is also a perquisite, it will not be included. Daughter education will also be not included. So in this case the salary will be 15 lakh 6 lakh 60,000 12,000. So it is 21 lakh 70,000. This is the definition of salary for rent free accommodation. ठीक है, इसका कैलकुलेट करना है 15%. So 15% of salary कैलकुलेट करो कितनी आएगी, 21 lakh 72,000. 15%. So 3,25,800 and 10% of the cost of furniture. So जो furniture की cost है वो 7 lakhs given है. So it is 10% of that. इन दोनों को add up किया, this is the value of rent free accommodation. So this is the gross salary. ठीक है, question ना उसमें ऐसे लिखा था, the company has provided him a flat at Delhi and the furniture which has a cost. So I did a mistake that I did not read it. This is the cost of the furniture which is given. ठीक है, so the company, in case they have provided him a flat and the rental charges are not given, we will always assume that it is owned by the company. अगर rental charges दिए हैं तो it means it is on hire.
ठीक है, सो जो भी एक्चुअल चार्जेस लगे हैं फिर वो टैक्सेबल है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट चले, 2-3 स्लाइड्स बची हैं बस। आपकी 1 बजे क्लास होती है ना? यस मैम। ठीक है, जल्दी से करते हैं। In case the accommodation is not provided for the full year but only for the part of the year, then the salary for RFA will calculate it only for that part of the year, and similarly the value of the furniture is also calculated for only that part of the year. ठीक है, सो अगर ऐसे क्वेश्चन में गिवन है कि अकोमोडेशन सिर्फ 6 महीने का था, तो सारी कैलकुलेशंस 6 महीने के बेसिस पे होगी, सैलरी की भी और फर्नीचर की भी। Now assume in the previous example the company charges rent at the rate of 11,000 per month from Mr. X for the use of accommodation and furniture. So these are the actual charges which are charged. So in this case it will be minus this is allowed. Let me just quickly revise the concept again. In case the employer has given it on rent, this one. If the accommodation is given by non-government employer and it is taken on rent by the employer, then it will be actual rental expenses and 15% of salary. So actual rental expenses कितने हैं आपके? Actual rental expenses is 1 lakh. Oh, sorry. पता नहीं मैं आज क्या कर रही हूँ। इसमें company is charging from the employer. They have not taken the house on rent, they are charging. So in this case it is allowed to be reduced. पता नहीं आज क्या हो रहा है जल्दी में, I am not even reading the questions properly. The company is charging, so अगर कुछ company charge करती है तो it is allowed to be reduced. ठीक है, so 11,000 into 12, 1,32,000 is allowed to be reduced. Clear है ये? ठीक है, सेम चीज है, बस ये लिखा हुआ है कि कंपनी कुछ एम्प्लॉय से भी ले रही है। तो जो भी ले रही है इसका मतलब, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था दैट वाज रेंट फ्री अकोमोडेशन, और दिस वाला इज अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट बिकॉज द कंपनी इज चार्जिंग सम रेंट फ्रॉम द एम्प्लॉय। ठीक है, so it is allowed to be reduced. Now assume in the previous example the company is not the owner of flat but has taken on rent. ठीक है, अब कंपनी ने रेंट पे लिया हुआ है and the rent is rupees 26,000. Then in this case the actual rental expenses and 15% of salary. ठीक है, so actual rental expenses is 26,000 into 12, 15% of salary that we have already calculated, the lower of these amounts. So this is the lower, so this is the perquisite value. ठीक है, next is the medical perquisites. ठीक है, so we have discussed the medical allowances, we have also discussed insurance premiums. Now this is the medical perquisites. So in case any medical facility is provided by the employer, then it is fully exempt if any one of the following conditions get satisfied. What are the conditions? The facility is provided in the hospital which is owned by the employer. So employer का hospital है जिसमें medical facilities दी जा रही है, या फिर medical treatment is provided in the government hospital, या medical treatment is provided for specified diseases in approved hospital. Specified diseases are specified by the income tax law, and hospitals की भी categories they have provided. ठीक है, so अगर specified disease और approved hospital में तब भी मिलेगा, मतलब exempt होगा. An employer reimburses any insurance premium paid by the employee for an insurance for his health or the health of any member of his family in a scheme approved by central government or insurance regulatory and development authority. ठीक है, सो अगर इससे अप्रूव्ड कोई स्कीम है जिसमें एम्प्लॉय ने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और एम्प्लॉयर उसका रीइंबर्स करा रहा है, तो ये अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय, दैट विल बी एग्जेम्प्टेड, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल. ठीक है, तो ध्यान रखना किस चीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, मेडिकल पर्क्स के बारे में बात हो रही है. ऑल्दो it is a benefit which is given to the employee but it is exempted. It's not very important also for the examination point of view. Other perquisites rules in 3 sub rule 8.
all other kind of facilities which we have not discussed so far will always be fully taxable. So कोई नया नाम आ जाता है तो उससे confuse मत होना, it will be taxable, like expenses on repairs or maintenance of the house of the employee done by the employer. If employer is producer or manufacturer of any product and it is given the product to the employer at a rate less than the market rate, then the benefit is also taxable for the employer. ठीक है. सो अगर कोई भी ऐसा नया आ जाता है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल. और कुछ कुछ फैसिलिटीज हैं, ये 5 इनको याद कर लेना. टेलीफोन फैसिलिटी और इट्स रिइंबर्समेंट, न्यूज़पेपर फैसिलिटी और इट्स रिइंबर्समेंट, मैगजीन फैसिलिटी और इट्स रिइंबर्समेंट, इंटरनेट फैसिलिटी और इट्स रिइंबर्समेंट, मोबाइल फैसिलिटी और इट्स रिइंबर्समेंट. जो भी इन कैटेगरीज की फैसिलिटीज है, मतलब परक्विजिट्स हैं, दे आर ऑलवेज एग्जेम्प्ट. बट इन्हीं नाम के आगे अगर अलाउंस आ जाता है, टेलीफोन अलाउंसेस, न्यूज़पेपर अलाउंसेस, मैगजीन अलाउंसेस, इंटरनेट अलाउंसेस, मोबाइल अलाउंसेस, और अलाउंसेस आ जाएगा तो पूरा टैक्सेबल. ठीक है. सो ये 5 ऐसी कैटेगरीज हैं जिसकी फैसिलिटी, दैट इज परक्विजिट, इज एग्जेम्प्टेड, बट अलाउंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल. ठीक है. सो दिस कंप्लीट्स योर सैलरी. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन द बुक टू प्रैक्टिस, बट जो मेरे स्लाइड्स में है सिर्फ इतना ही करना है आपको, इससे ज्यादा नहीं करना है. दिस इज कंप्लीटेड. ठीक है, एज पर योर सिलेबस. सो आप जितनी भी प्रैक्टिस करना, मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगी कुछ प्रैक्टिस के लिए और टेस्ट ले लूंगी. दैट विल बी इनफ. एनीथिंग यू वुड लाइक टू डिस्कस?